आई लव विगल, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. तभी बम्पा का भी मतलब कुछ वैसे ही जोन है. हाँ, the vibe is same, yes. या गिटार तोड़ना सही भी है, गिटार तोड़ना गलत भी है. लोगों का उसको हेट करना ठीक भी होगा, वो गलत भी है. सबका अपना पर्सनल है मैम. मतलब इट्स इंटरनेट. आई डोंट नो, लाइक लोगों को इस बात का फ़र्क नहीं है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है. लोगों को अपना परसेप्शन बनाना है. Your first ever heartbreak. Do you remember? कौन भूलता है? बोलना चाहोगे? क्या बात करूँ, बात हो गई जो हो गई बात. Done. मैं फिर आपको नहीं पूछूंगी. Hi guys, my name is Dishya and you're watching News 18 SHOWSHA, and today we have with us the one and only King. Hi, how are you? Thank you so much. मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? I wanted to start off by asking, how did Bumpa happen? It happened so smoothly and very fast, to be honest. Doesn't take too much time. And like दो क्रिएटिव लोग स्टूडियो में गए and it just happened. We were in a good mood. So yeah, so हम कुछ ऐसा मीनिंगफुल नहीं बनाना चाहते थे, हम जस्ट कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो फन हो. So yeah, बहुत fun है. Thank you so much. Like I've been addicted to that song from the time I've heard. Thank you. And it's just been on loop. Thank you so much. That means a lot. So who reached out to who though? पता नहीं. पता नहीं. Like मैं सबका फैन हूँ यार. तो मतलब जब कोई ऐसी चीज़ मेरे को सुनने में आती है ना, that somebody is interested in like working in you, I'm like okay, let's do it. I've been a fan. So yeah. और पता नहीं कौन किसके पास गया मेरे ख्याल से. I don't know. And how long did it take to, from the point of recording till the music video making, कितना टाइम लगा? मैं वैसे कुल मिलाऊँ तो 2 दिन. बस? एक दिन गाना बनाने के, एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करने के. इसके बीच में जो समय लगा वो नहीं से कंटिन्यूसली मैं आपको टोटली बता रहा हूँ. 2 ही दिन है बस वो. बाकी तो उसके बीच में तो फिर वो अपने काम, मेरे अपने काम. बट देन एक डेट बनी, फिर शूट की सारी चीज़ें, प्री प्रेप वगैरह. ज़्यादा टाइम नहीं लगता. टीम अच्छी हो तो टाइम नहीं लगता. That's true. So you know, Jason already बहुत एशियन आर्टिस्ट के साथ थोड़ा काम कर चुका है. And when you came across or he came across you all, did you all already hear each other's music and discuss each other's work when you all met? नहीं, ऑब्वियसली वो मेरा मतलब उनका म्यूज़िक बड़ा हुआ तो सबने सुना. मैं भी एज अ फैन मैंने भी सुना. मैं फ़ैन रहा हूँ ऑब्वियसली. एंड जब मेरा म्यूज़िक बड़ा हुआ तो उन्होंने सुन लिया होगा. हो गई चीज़ें. Yeah. Which is that one song of Jason that you really liked? I love Wiggle. Oh, That's one of my favorite songs. तभी बम्पा का भी मतलब कुछ वैसे ही जोन है. हाँ, the vibe is same, yes. Yeah. And did he tell you what is your his favorite song of yours? मेरे तो इंटरनेशनल मार्केट तक गाने ये भी मान मेरी जा गया है ना. हाँ, सो ऑब्वियसली पहले तो वही सुना उसने. देन फिर ही सॉ द होल क्रिएशन एंड एवरीथिंग, लाइक जितने भी. तो ही फाउंड आउट कि आर्टिस्ट भी है, नॉट जस्ट अ म्यूजिशियन. सो या. You know, in the past 2 years, Asian artists, especially Indian artists, को global इतने different global platforms मिले. Why do you think that suddenly there is a boost of artists? And I've noticed at least it was mostly post lockdown. So has lockdown been one of the factors, or are there any other factors? Yeah, we have cheap internet and a big population, and we are so creative. That these are the only reasons. For the international public as well? Yeah, obviously. How is that? आप इंस्टाग्राम चलाती हो? हाँ. पहले नहीं चलाते थे, पहले यूएस में चलता था सिर्फ. Yeah. Makes sense. And you know, India has also gone to Coachella, and we've got, you know, we had Diljit performing last year, we had AP Dhillon. Yeah. And you know, I'm hoping that as and when years come, we'd see you also there. But do you think like validations like Coachella or a Burning Man, all these matter? मैटर तब करती है जब आप चाहते हो वो करना. और आप कर भी लो, अगर आप चाहते नहीं हो वो करना तो वो मैटर करेगी नहीं, आप भूल जाओगे. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए मैटर नहीं करती बट मैंने करी हैं, मैं भूल चुका हूँ. और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं करना चाहता था और मैं कर रहा हूँ और मुझे याद है. सो जस्ट सबका अपना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. बट हाँ, डेफिनेटली आप जिस जगह पे जा रहे हो, आप जिस परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो चीज़ कोई रिप्रेजेंट आप कर रहे हो किसी चीज़ को, और उस जगह की कोई मान्यता, कोई हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी है और वो चीज़ आइकॉनिक है, सो वो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए हमको एज एन आर्टिस्ट. कि नो मैटर व्हाट आपके लिए चीज़ मीन करती है नहीं करती, बट अगर आप वहाँ हो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो और उस जगह का अच्छा यूज़ होना चाहिए. बस दैट्स व्हाट आई फील. You know, there was a lot of debate also after AP Dhillon had performed about the whole guitar moment. It was a very rock star moment, but there were also a lot of people who didn't appreciate it. Where are you on that stand? I'm nowhere.
गिटार तोड़ना सही भी है, गिटार तोड़ना गलत भी है, लोगों का उसको हेट करना ठीक भी होगा, वो गलत भी है, सबका अपना पर्सनल है मैम। मतलब इट्स इंटरनेट, आई डोंट नो, लाइक लोगों को इस बात का फ़र्क नहीं है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों को अपना परसेप्शन बनाना है। एंड चीज़ें बहुत अलग है, हर एक आर्टिस्ट अपने एक तरह से जाता है, कुछ सपने देखता है, कुछ चीज़ें करता है, वो कुछ चीज़ें सेंस बनाती है, कुछ चीज़ें नहीं बनाती दुनिया के लिए, बट उसके लिए बनाती है, राइट। आपने जब, अब छोड़ो, मैं अलग नहीं जाना चाहता है इस पर, मैं किसी के साइड हूँ नहीं, कहने का मतलब है ऐसे नहीं कोई सेफ स्पॉट है, मैं जेन्युइनली किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के शोज़ पे जी फ्लेम होती है, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं, राइट, वेस्ट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना, वहाँ पर भी तो लड़कियाँ होती हैं, राइट। यस, सो इट्स ऑल अबाउट आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वही है। इट्स गोना बी लाइक बिगेस्ट डिबेट इन आवर सोसाइटी, एंड के हम खुद करें तो हम ठीक हैं, बट कोई दूसरा करे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। हैज़ बीन लाइक दैट, आई डोंट नो मैम। हिप हॉप आर्टिस्ट अपने स्टूडियो के अंदर शूज़ रखते हैं, शूज़ पहन के जाते हैं, और उनके पास शूज़ का कलेक्शन रखा होता है, उनके लिए वो सिर्फ जूते नहीं होते। बट कोई और ट्रेडिशनल बंदा देखे तो बोलेगा ये अपने ये, अरे ये मंदिर के अंदर जूते क्यों रख रखे हैं, वो भी ठीक है, बट उस बंदे ने, वो बंदा किसी घराने से नहीं आता, उसने म्यूज़िक कैसे सीखा, और अब उसके पास पैसा, वो चाहता है वो अपनी फेवरेट, ताकि वो अपने राइट मूड में रहे जब वो क्रिएट कर रहा है। तो जब वो शूज़ वहाँ रख रहा है और वो नाम कमा रहा है बंदा, उसके घर में वो चीज़ें सेट है, टॉयज़ रखे हुए हैं छोटे छोटे जो बचपन में लेना चाहता था, नहीं ले पाया, तो वही है कि पैसे आने से किसी ने हारमोनियम खरीदा तो किसी ने जूते खरीदे, दोनों ठीक है अपनी जगह, अब तुम्हें कैसे लेना है, तुम लेते रहो उस बात को। वेरी नाइसली सर, थैंक यू। बट हैविंग सेड दैट, हाउ डू यू मैनेज सोशल मीडिया ट्रोल्स? ट्रोल्स मैं तो खुद ट्रोल कर दूं, मेरे को मौका मिले तो मैं तो मीम पेज चला दूं बड़े बड़े। मैं कैसे, मैं हैंडल क्या करने वाली चीज़ है, तो है ही नहीं, क्या But there must be hate comments, ना कुछ लहरों को तो रोक थोड़ी सकते हैं, वो तो आएंगी, तैरना सीखना पड़ता है। Very nice. मैं हैंडल नहीं करता मैम कुछ भी, मैं सिर्फ जो बनाता हूँ मैं वो हैंडल करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी हैंडल नहीं करता। सब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ भी कर दोगे तो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उसके होंगे, लोग बोलेंगे कि ऐसे क्यों नहीं करा, वैसे क्यों नहीं करा, तो उस हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती। I really like how clear you are and how sorted you are with everything. It's just like, हाँ जैसे दुनिया चल रही है चलने, तो मैं अपना काम करता रहूँगा। मैं किसी को पकड़ के थोड़ी हिला सकता हूँ कि मुझे प्यार कर, देख मैं कितना म्यूजिक निकाल रहा हूँ, देख मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ रात भर, क्या फ़र्क जा रहा है, उसने अपनी दाल रोटी खानी है, सोना 3 मिनट का गाने तो सुनना, उसने नहीं पसंद आया, अरे हटाओ, बंदा ही बकवास है। एंड दैट्स हाउ आर्टिस्ट गेट हेट, मतलब उनको हेट इसी बात का मिलता है, क्योंकि आप कैसे बताऊँ, एक फ़ैन और एक कंज्यूमर में ना यही फ़र्क है, एक म्यूज़िक लिसनर में और एक जस्ट एंटरटेनमेंट को ग्रैब करने वाले में यही फ़र्क है। जो एक म्यूज़िक लिसनर होता है वो उस आर्टिस्ट की साइड भी जानने की कोशिश करता है कि क्यों बनाया, कैसे बनाया। जो सिर्फ एंटरटेनमेंट वाला होता है वो वेट करता है क्या चीज़ वायरल हो रही है ताकि हम उस पर रील बनाए, ताकि ये चलाए वो चलाए, और अपने पल्ले से बाहर की बातें हैं। You have done a collab with Jason. You also worked with Nick. अभी आपके बकेट लिस्ट में और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? मैम जैसे मैंने जेसन का मतलब नाम नहीं लिया, सीधा ट्रैक घेर दिया। अब मेरे लिए, मैं पहले वो बंदा था जो पहले बोलता था कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ और ये मैं करके रहूँगा। अब मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोलने वाली चीज़ सारी मैंने कर दी। अब जो भी है सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे क्या नाम बताऊँ, फिर वही है कि कर देते हैं। है बट मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा। You know, you've also been very protective of your personal life. Is that a reason behind it? Like you've consciously taken that step? Yeah, there's a huge reason behind it. मेरे घर वाले वो ज़िंदगी नहीं जीते जो मैं जी रहा हूँ। मेरे मॉम डैड उस फैंसी सर्कल से नहीं आते जहाँ पर किटी पार्टीज़ होती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा उस चीज़ को, बट उस जगह से आते ही नहीं है। मैं वहाँ से निकल के कहीं आ गया हूँ, तो मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करता हूँ, मेरे पेरेंट्स शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, और मैं उनके लाइक उनको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मुझे दिक्कत होगी, और फिर मुझे ज़माने से दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इतना पॉजिटिव रहूँगा नहीं फिर। तो इसलिए मैं उन्हें दूर रखता हूँ इन चीज़ों से, और उनको ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आती। एंड ऑल्सो गलतियों से सीखता है इंसान, मैं कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता हूँ। तो मैंने ये चीज़ जानी है कि अपनी पर्सनल लाइफ बाहर मत निकालो, क्योंकि मेरे घर पे 24 घंटे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ जो ये बता रहे लोगों को कि मैं कैसी लाइफ जीता हूँ।
लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, लेकिन लोग लोग देखते हैं सब, ऐसी सीरीज़ देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं कि भाई इनके घर में क्या चल रहा है। यार उनकी दाल रोटी उससे चल रही है। मेरा बाप सरकारी मुलाजिम है, उनकी जॉब से चलती है। उनके घर में उनके मुंह के सामने कैमरा रख के आप क्या पूछना चाहोगे उनसे? ये बहुत बुलशिट चीज़ है, तो इसलिए मैं उन्हें बहुत दूर रखता हूँ उन चीज़ों से। इनका कल को यार कोई मैं जैसा दिखता हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं, बहुत बेसिक हैं वो। कल को अगर उनके रहन सहन पे किसी ने मजाक उड़ाया, कोई ऐसी चीज़ करी कहीं बुलाकर, तो मैंने बंदा मार देना है मेरी सैनिटी के लिए, एंड मेरे घर वाले खुश हैं उस चीज़ के लिए। तो दैट्स वाई आई एम सो प्रोटेक्टिव। और मेरे दोस्तों के लिए भी मैं ऐसा हूँ। मेरी पर्सनल यही मेरी लाइफ है, ये भी मेरी लाइफ है, ये भी मेरी लाइफ है। मुझे दोनों, और मैं चुना गया हूँ उस चीज़ के लिए। आई एम द चोजन वन बाय द पीपल, बाय द गॉड एंड एवरीथिंग। तो मुझे दोनों को सही तरीके से सर्व करना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहता कि बंदी बनते ही या कोई डिसीजन लेते ही दुनिया में एक रील डाल दूं कि देखो कितनी सिनेमैटिक है कितनी। मैं उसके लिए म्यूज़िक वीडियोस बनाता हूँ ना, उसके लिए म्यूज़िक वीडियोस बनाता हूँ। मेरे मतलब ठीक है, लोग करते हैं उनके लिए ठीक होगा, मेरे को नहीं समझ में आती चीज़। मैं करोड़ों रुपए की शादी करके दुनिया को दिखाऊंगा, देखो मैंने करोड़ों रुपए की शादी करी। मेरे को इंसान के साथ रहना है, उसने रहना होगा तो ऐसी हम रह लेंगे छोटी मोटी करके, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें दुनिया को बताने वाली है ही नहीं। मतलब मैं अपने पेट भी मेरे घर में अदा है, उसकी भी फ़ोटो अगर कभी डालता हूँ तो पीछे नीचे नज़र का टीका डाल देता हूँ। लोग कहते हैं इसके फ़ैन पेज बना दो। और उसका फ़ैन पेज क्यों जो ना, उसे चलाना थोड़ी आता है इंटरनेट, उसको क्या मतलब? वो बिल्ली है बेचारी मेरी, उसको खाना चाहिए बस अपना, और उसको कभी कभी मैं आ जाऊँ, प्यार कर लेती है, बस बात खत्म। अजीब है यार लोगों का टंटा। लोग चाहते हैं उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में ना हर इंसान बहुत बहुत अच्छा फील करे, बहुत वो फील करे कि ओ माय गॉड कितनी इंपॉर्टेंट है, ओ माय गॉड इसके बाद ये वाले शूज़, ओ माय गॉड ये वाला बेड, ये वाला पेट। अजीब है लोग, सब चाहते हैं उनको वैल्यू मिले बट काम नहीं करना चाहते कोई वैल्यूएबल बनने के लिए। एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट, एवरीबडी पुट्स अ फिल्टर, अपलोड्स अ पिक्चर एंड थिंक लाइक दैट पीपल, लोग उन्हें बोले कि आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान, ओ माय गॉड आप कितने परफेक्ट हो। वो फिल्टर आपको परफेक्ट बना रहा है, आप इंसान परफेक्ट नहीं हो। You know, I also follow this motto that don't believe anything that's on Instagram. Like there's more to that picture. Go behind it also. आई मीन सोशल मीडिया ही तो है, इंस्टाग्राम ही तो है। आप पहले फेसबुक भी तो देखते थे ना, आप फेसबुक पे लोग बिलीव नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है। That's true. इंस्टाग्राम है तो उस पर ट्रेंड पे रहेंगे लोग, जब इंस्टा चला जाएगा कुछ और आएगा तो लोग उस पर बिलीव हो जाएंगे। लोगों के बिलीव कितने कच्चे हैं आप ये देखो ना। That's true. Okay, I have one small segment about my firsts. I want to start off by asking is that who's your first friend in the music industry? First friend? Like a big brother, Bacha bhai. The first and probably the last that I trust. What was the first time you ever performed? हॉस्कास विलेज हाई फाइव क्लब, एक कैफ़े था वहाँ पर, क्लब और कैफ़े। मेरी एक दोस्त थी प्रियंका, मेरी स्कूल मेट, तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ काम करता था एज ए मैनेजर। तो उसने बात करके मेरे लिए वो जगह बोली थी कि तू यहाँ परफॉर्म कर। तब मेरे 1100 सब्सक्राइबर थे और तब 300-350 लोग शो अप करे थे उस जगह पर। मैंने 3 घंटे परफॉर्म करा था खुशी के मारे, और पहली बार मैंने अपना फ्लायर देखा था, पैम्पलेट देखे थे, सबने छपवाए थे, तो याद है वाज द फर्स्ट। Which year was this? हसल की कॉल, मतलब हसल का ऑडिशन देने से 1 महीने पहले ही मैंने वो परफॉर्म करा था, और उसके 1 महीने बाद ही फिर मैं हसल पे था। वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। Damn cool. अब फिर मेरी जो मेन परफॉर्मेंस फिर हसल पे ही, स्टेज पे ही मेरी परफॉर्मेंसेस वगैरह जो भी हुई है वही हुई है। Your first paycheck? माय फर्स्ट पे चेक, द फर्स्ट मैं 13 साल का था, मैं फुटबॉल खेला करता था। जहाँ मैं फुटबॉल खेलता था उस जगह का नाम DDA था, और वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनंद विहार में, वहाँ से मैं चेक्स मिला करते थे। तो 4 महीने खेला था, मेरे को पहले चेक मिला था। 3 महीने खेला था, मेरे को पहले चेक मिला था 4725 रुपये का। उससे मैंने गिटार लिया था, तो हाँ वो मेरा पहले चेक। Your first ever international trip? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दुबई थी। हम वो छोटे वाले लोग, हम सीधा, हमारे इंटरनेशनल पहली दुबई होती है। हम नहीं जाते बर्लिन, मॉस्को। पहले हम यहाँ जाते पड़ोस, उसके बाद तो वो थी, उसके बाद हाँ वही थी, दुबई थी। And your last question is your first ever heartbreak. Do you remember? कौन भूलता है? बोलना चाहोगे? क्या बात करूँ, हो गई जो हो गई बात। मैं फिर आपको नहीं पूछूंगी। एटलीस्ट कौन सी उम्र में हुआ? डू यू रिमेंबर दैट एटलीस्ट? ऐसे ही था मैं, 21-22 साल का ही था, थोड़ा टाइम पहले की बात है, कुछ साल पहले की। 21-22 था मैं। होता है 21-22 साल में हर इंसान ना, ये कर जाऊँगा, वो कर जाऊँगा, दुनिया बदल दूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, और ख़ुद को बदलना पड़ता है। कुछ नहीं बदलता बाकी।
इससे इतना रिलेटेबल मत बनो. All right, thank you so Thank much you so for much. talking to Thank you me, so much. and all the best for all the coming songs. I'm Thank you so looking much. forward to Means a every lot. single track. Sure. मजा Thank आएगा. you. Thank you so much.